Today's video I am going to explain the next topic, that is fundamental concepts in organic reaction mechanism. Now in this video I am going to explain that how reaction, basically chemical reaction, takes place in organic compounds. Alright. Now we know that in any chemical reaction there are reactants which reacts together to give the desired product. Similar is the case with organic compounds also, but here we need one attacking reagent to basically induce the reaction. Okay, so let's understand how organic reaction takes place, that is the reaction mechanism. It is a very important topic, and if you understand this in this chapter, then you will feel a little bit of burden in standard 12th. Otherwise it is a very easy topic and you will be able to understand this. Now in any organic reaction, basically the attacking reagent reacts with the organic molecule or the substrate to give the required product. Okay, and this reaction involves the formation of one or more intermediate. Okay, so how it is explained or how it is represented, it is like this, that just suppose you have this organic molecule. It is also known as substrate. You will hear this term a lot or read this term a lot, substrate. So what is this substrate? It is that compound that supplies carbon. It is that compound that supplies carbon to the reaction or chemical reaction. This is a carbon supplying compound. Organic molecule, it must be having some carbon, right? Now this organic molecule, in the presence of one attacking reagent, it starts the chemical reaction, or you can say it induces the reaction, okay, upon attacking the substrate. So it can be any other compound. It can be any other compound other than carbon or carbon itself also. The attacking reagent may also contain carbon. Now first, when the attacking reagent attacks the organic molecule, one intermediate compound is formed first. One intermediate is formed first. Okay, now this intermediate is very unstable. It is very unstable. Okay, now I will explain this why it is unstable, and after this we get the product. As because when it is unstable, it wants to gain the stability, so it again rearranges itself and turn into product or products with a byproduct. One byproduct will also form. Byproduct means product के साथ जो बने उसको byproduct कहते हैं. So basically this is the mechanism of organic reaction. Okay, now for example, just see, let us take one organic molecule, that is methane, that is CH4. It is the substrate. It has carbon, it will supply carbon. Now one another attacking reagent I will take, that is Cl2. Now Cl2, it is an attacking reagent because it wants to combine with this carbon, right? So now it became the reactants. After that, when this attacking reagent attacks the carbon, it wants to combine with the carbon. One product first formed, that is intermediate, right? So it will be like this. Just suppose we have 4 hydrogen atoms like this in methane, and one Cl will join like this. Now why it is unstable? Because the carbon, the tetravalency, carbon has tetravalency, means it can form 4 bonds maximum. It can't make more than 4 bonds. That is why this is an unstable product. It is an intermediate product. It may be there for some time, and that is why it is an intermediate. It is very unstable. Then after that, what happens is that this one hydrogen gets removed from here and one more Cl is there. It then combines and form one byproduct first, that is HCl, and
Then now how many hydrogens are there? After removing one hydrogen, 3 na. So CH3Cl. Now carbon has 4 bonds, it is stable. So we get methyl chloride. Okay. So this sequential account of each step describing the details of the electron movement, energetics during the bond cleavage and the bond formation, and also the rate of transformation of reactant into product is called the reaction mechanism. Okay. So this is the thing. Now if the attacking reagent also has carbon, now this attacking reagent didn't had carbon, right? It only have this Cl2 group. Now if attacking reagent also has carbon, like just suppose this type of example is there, Br plus CH3OH, right? Now this is the attacking reagent and it is also having carbon. So then what to do? Then the how to determine which one will be the substrate and which one will be the reagent, attacking reagent. So here we are focusing on producing what? Okay, that we will produce, that we will concentrate over here. So this is the thing. Now this reaction mechanism, in this reaction mechanism we will concentrate about few topics, or concentrate on few topics, that is first of all the electron, or just say the breaking and formation of new bond, means any new bond is formed by the breaking of old bonds. So we will study this in a fission of covalent bond, breaking and formation of new bond. So this is also a part of reaction mechanism. Then second is electron movement, means when electron moves from one compound to another compound, then also the reaction mechanism is explained. Okay, so in these two parts we are going to study this whole reaction mechanism. Okay, now let's start with the fission of covalent bond. Fission of covalent bond, very important topic and very easy topic. Okay, now fission is, what does it mean? Fission, it means breaking. All right, now there are two possible ways through which a covalent bond breaks or gets cleaved. Cleaved का मतलब भी होता है break करना, ठीक है। तो दो तरीके से कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा। कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा क्यों? अगर बॉन्ड नहीं टूटेगा तो नया बॉन्ड कैसे बनेगा, है ना। तो ये बनता है दो तरीके से, ठीक है। दो तरीका क्या है? फर्स्ट इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज, एंड द सेकेंड वन इज होमोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज एंड द सेकेंड वन इज होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। ये दोनों ही तरीके से क्या होता है, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड टूटता है। ऑलराइट, तो इसको हम लोग समझते हैं। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज, okay. Now hetero means, we know it means different, right? इसका मतलब होता है different. Now when some molecules, कुछ ऐसे molecules होते हैं that have same polarity, not same, just a minute, they must be having different polarity, kind of different polarity, or if they are ionic, they basically show or breaks through heterolytic cleavage, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एंड लिटिक का मतलब होता है ब्रेक। जब मॉलिक्यूल्स डिफरेंट तरीके से ब्रेक हो और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो दोनों में इक्वल तरीके से ना बटे बट डिफरेंट तरीके से बटे, है ना, इसी को कहा जाता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। मीन्स if a covalent bond breaks in such a way that both the electrons of the shared pair are taken away by one of the bonded atoms, एक एटम दोनों ही इलेक्ट्रॉन को चुरा के लेके चला जाता है, तो इसी को कहा जाता है हेट्रोलिटिक फिशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है, आपके पास है ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं
और मेरे पास यहाँ पर एक OH है, ग्रुप है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, जब ये क्लीव होना चाहेगा, मतलब ये जब निकलना चाहेगा यहाँ से बाहर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन ने अपना शेयर किया है, ठीक है। जब ऑक्सीजन यहाँ से इसका बॉन्ड वो तोड़ना चाहेगा, ऑक्सीजन अपना बॉन्ड को, या किसी वजह से इसका बॉन्ड जब टूटना चाहेगा, तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किया था वो तो लेगा ही साथ कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो दैट इज़ वाई, इसी वजह से क्या होगा, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, और ऑक्सीजन अनायन बना लेगा, और यहाँ पे कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। कार्बन का पहले क्या था, ऑक्टेट था, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब उसको बाहर निकलना था यहाँ से, वो जो शेयर किया था इलेक्ट्रॉन अपना वो भी ले गया, साथ साथ कार्बन का भी, जो कार्बन ने भी जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था ऑक्सीजन के साथ, वो भी उसको लेके बाहर निकल गया। दैट इज़ वाई कार्बन के पास अब क्या हो गया, जो ऑक्टेट था वो कन्वर्ट हो गया सेक्सटेट में। एक वर्ड है सेक्सटेट, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास अब हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, हो ही गया, ठीक है। तो देख रहे हो कि whenever a covalent bond breaks in such a way that both the electrons of the shared pair are taken away by one of the bonded atoms, this bond fission is called heterolytic fission। और इस heterolytic fission की वजह से आपको एक स्पीसीज मिल रहा है जिसका नाम होता है कार्बोकटायन या कार्बोकटायन। कार्बोकटायन क्या है, कार्बोकटायन वो स्पीसीज़ है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड अ पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज़ आपने प्रोड्यूस किया यहाँ पे बिकॉज ऑफ हेट्रोलिटिक फिशन, इसको कहते हैं मिथाइल कार्बोकटायन, ठीक है। अब कार्बोकटायन, इसको पहले कार्बोनियम आयन भी कहा जाता था, ठीक है। अब ये कार्बोकटायन जो होता है, अब ये क्या स्टेबल है, कुछ सोच के देखो, क्या ये स्टेबल है? नो, इट इज़ नॉट स्टेबल, इट इज़ हाईली रिएक्टिव, it is highly reactive and it is highly unstable species, ठीक है। इसको जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन अपना लेना चाहेगा क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है ना। तो अब ये जो कार्बोकटायन है, हम जानते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन होता है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन होता है। अब जो प्राइमरी कार्बन है, इसका मतलब क्या है, प्राइमरी कार्बन का मतलब है, या उसको 1 डिग्री भी कहते हैं, उसको 2 डिग्री भी कहते हैं, उसको 3 डिग्री भी कहते हैं। तो प्राइमरी कार्बन का मतलब है कि जो आपका कार्बोकटायन है, ठीक है, जो कार्बोकटायन है, मान लो ये कार्बोकटायन है, उसके साथ अगर एक ही आपका ग्रुप जुड़ा हुआ हो, एक ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो वो हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसका हम, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथाइल कार्बोकटायन, इथाइल कार्बोकटायन, ओके। नाउ इफ़ वी सी द सेकेंडरी, अब सेकेंडरी में क्या है, जो भी आपका कार्बोकटायन है, ठीक है, उसके साथ अगर 2 मिथाइल ग्रुप्स जुड़ जाए तो उसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी कार्बोकटायन। तो इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन। आइसो क्यों लिख रहे हैं, अगेन ये आइसोमर है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दूसरी बात कि ये जो कार्बन है हम इसको इस तरह से लिखेंगे, देखो स्ट्रक्चर ऐसा बन गया ना, जब भी सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ता है हम उसको आइसो टर्म यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ वाई वी हैव रिटन इट एज आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन। सिमिलरली टर्शरी क्या है कि आपके पास जो कार्बोकटायन है उसके साथ अगर 3 मिथाइल ग्रुप्स जुड़ गए तो इसको हम कहते हैं टर्शरी कार्बोकटायन। तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। वाई टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, बिकॉज यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, 1 कार्बन 4 कार्बन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इनकी, ये कार्बोकटायंस। तो कार्बोकटायंस जो फॉर्म हो रहे हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव एंड दे आर अनस्टेबल, इट इज़ करेक्ट। बट कौन कितना ज़्यादा मतलब स्टेबल हो पाएगा, ठीक है। अब इनमें भी स्टेबिलिटी हो सकती है, तीनों की तो सेम
अमाउंट ऑफ अनस्टेबिलिटी तो नहीं होगी ना, हो सकता है कि ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो इनसे या ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो इससे। तो लाइकवाइज तो जो आपका अल्काइल ग्रुप है, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये अगर बढ़ते जाए, है ना, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ते जाएगी एनवायरनमेंट में। ठीक है, कार्बोकैटायन बनेगा, ये अनस्टेबल है, लेकिन प्राइमरी के कंपैरिजन में टर्शरी थोड़ा ज़्यादा देर तक एनवायरनमेंट में रहेगा, है ना, थोड़ा ज़्यादा देर तक वो स्टेबल होगा, कहने का मतलब यही है। तो जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है कार्बोकैटायन का, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि जो टर्शरी है, टर्शरी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, एंड सबसे अनस्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकैटायन, ये वाला। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ओके, ये तुरंत अगर बनेगा तो तुरंत वो किसी के साथ रिएक्ट करके एकदम रिएक्शन तुरंत होती है। अब ये क्यों होता है ऐसा, इसको हम लोग इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस आपको इतना ही समझना है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, जो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, ये कार्बोकैटायन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फिर। ठीक है, हम तो जानते हैं कि जो हमारा मीथेन है, इसमें जो कार्बन है दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज, यही होगा ना। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया, है ना। तो कार्बन के पास हम जानते हैं कि इस तरह से 1s 2s एंड यहाँ पे 1s 2s एंड 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स होते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 और 2p में इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक s एंड 3p मिलके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से निकाल दिया ना, तभी ना कार्बोकैटायन बना। अब हाइड्रोजन एक निकल गया, ठीक है, और आपके पास मतलब ये भी हो गए, क्या कहते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो निकल गया और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये तो निकल गया ना यहाँ से। तो बेसिकली ये कार्बन से ही निकला है। ठीक है, मीथेन में CH4 था, ये CH3 हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन था ये तो उसको तो ऑक्सीजन ने ले लिया। दैट इज़ वाई क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो अब कितना बचा हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितना बचा, एक 2p में है और एक 2s में है, और 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अकॉर्डिंग टू रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन हम जानते हैं कि जो खाली p ऑर्बिटल है इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो अब तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बन सकता है ना, और तो कोई अवेलेबल ही नहीं है। दैट इज़ वाई जो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, सॉरी मिथाइल ग्रुप का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका हो जाएगा sp2। ठीक है, sp2, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था ना इसी को हटाया गया है, निकाला गया, ऑक्सीजन ने इसको लेके चला गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स है एंड इट्स अब sp2 हो गया है, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर एंड एंगल विल बी 120 डिग्री। ठीक है, सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगी। आई होप यू हैव गॉट दिस। नाउ ये जो हेट्रोलिटिक फिशन हुआ है, उसके वजह से एक और ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है। एक तो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहे, उसने एक इलेक्ट्रॉन, जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको वो लेके वो चला गया, इसीलिए कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और बन जाता है कार्बोकैटायन। अब इसी तरीके से ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा आपका ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ एक मेटल जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कोई मेटल है ना, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना, इट इज़ द किंग, इट वांट्स टू गिव इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज़ वाई ये इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती कार्बन को क्या करना चाहेगा, देना चाहेगा कि नहीं तुम मेरा इलेक्ट्रॉन भी ले लो। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न व्हाट विल हैपन, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और मेटल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज बना है
आ गया है कार्बन पर, इसको कहते हैं कार्बनायन एंड दिस इज़ द कटायन। ठीक है, तो इसको जब भी आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज कैन ऑल्सो गिव अ species in which the carbon atom bears a formal negative charge and it has an octet of electron. It has 8 electron. Okay, and such species is called carbanion. ठीक है, अब कार्बनायन को भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बनायन कौन होगा, सोच के देखो खुद, जिसमें ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड हो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, टर्शियरी, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल कार्बनायन, लाइक दैट। तो अब यहाँ पे वन मोर थिंग कि कार्बनायन की जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, है ना, ये कार्बनायन है, अब इसके पास एक्स्ट्रा है, मतलब इस तरीके से होगा। तो कार्बनायन पे जो कार्बन है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी अब वो sp3 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी चेंज, हम जानते हैं CH4 का sp3 होता है, तो CH3 का भी sp3 ही होगा। क्यों, क्योंकि इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं है, हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया था वो उसके sp ऑर्बिटल में चला जाएगा, है ना, तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। इसी वजह से इनका शेप यही होता है एंड इट शेप इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑलराइट, अच्छा, तो ये तो हमने सीख लिया कि जो बॉन्ड का ब्रेकेज होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है हेट्रोलिटिक फिशन और हेट्रोलिटिक क्लीवेज, जिससे कि क्या बन रहा है, कार्बनायन, कार्बकटायन और कार्बनायन, है ना। और होमोलिटिक क्लीवेज एक होता है। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है ना, जब बॉन्ड टूटता है तो सेम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, नाउ इसका मतलब क्या है कि इफ़ अ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट ईच एटम टेक्स अवे 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर, मतलब दोनों एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना चले जाते हैं, दोनों खुश, है ना। तो इसी फिशन को कहते हैं होमोलिसिस और होमोलिटिक क्लीवेज। एंड बेसिकली दिस क्लीवेज, इसको हम लोग फिश हुक एरो से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है Cl2, है ना, क्लोरीन। अब ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, या ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। चलो एक RX लेते हैं, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हलाइड, ये आपका अल्काइल ग्रुप है और ये एक हैलोजन है, इसलिए मैं इसको अल्काइल हलाइड कह रही हूँ। ठीक है, जब भी यहाँ पे आप हीट और लाइट देंगे, इसको हीट और लाइट देंगे, तो व्हाट विल हैपन कि जो भी इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर था इस हैलोजन के साथ, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा और हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, और इसी के वजह से एक इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस इसने ले लिया ना जो इसने शेयर किया था, इस जो हमने डॉट से डिनोट किया हुआ है इसको कहते हैं फ्री रेडिकल, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल क्या होता है, वो केमिकल स्पीसीज जो कि फॉर्म होता है बाय द होमोलिटिक क्लीवेज आर कॉल्ड द फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल जो होता है ये इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये है अल्काइल, इसको हम अल्काइल फ्री रेडिकल कहेंगे क्योंकि अल्काइल ग्रुप का है, इसलिए अल्काइल फ्री रेडिकल। ना ये जो फ्री रेडिकल है क्या वो स्टेबल है, सोच के देखो, ये भी स्टेबल नहीं है ना, बिकॉज ये जो फ्री रेडिकल है ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन है, और इसी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स अदर सिमिलर रिएजेंट्स एंड अदर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो आपके इस तरह से होते हैं। नाउ अगेन जो कार्बन एटम होगा फ्री रेडिकल का वो अगेन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और एक और बात है कि जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है वो भी आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जो टर्शियरी फ्री रेडिकल होगा मतलब उस पर 3 मिथाइल ग्रुप्स होंगे लाइक दिस, और हम इसमें डॉट से उसको डिनोट करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन आपस में एक एक ले रहे हैं ये लोग, इस एरो को कहा जाता है फिश हुक एरो, इस एरो को कहा जाता है फिश हुक एरो। ठीक है, अच्छा फिर सेकेंडरी में क्या होगा, मिथाइल ग्रुप 2 होते हैं,
है ना, ये एक फ्री रेडिकल, और प्राइमरी में एक ही मिथाइल ग्रुप है और ये एक फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, टर्शियरी, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन आपका होता है मिथाइल, मिथाइल फ्री रेडिकल इस तरीके से, देन विनाइल, लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो फ्री रेडिकल हैं ये जनरेट होते हैं बाय द होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ एनी कोवेलेंट बॉन्ड। जब आपस में इलेक्ट्रॉन इवन शेयर होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो था वही वापस आ जाता है, तो अनपेयर्ड था तो वही आ गया, इसीलिए इसको फ्री रेडिकल कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो वेरी हाईली रिएक्टिव। सो दिस इज़ हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस बेसिकली इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। पहला आपने सीख लिया यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से, ये भी काइंड ऑफ वही है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कुछ नहीं है, वही मैंने आपको जो बताया। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से भी आप समझ सकते हैं, एक बार और समझा देते हैं। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से भी कोवेलेंट बॉन्ड्स का फिशन होता है, वही हमने समझा इसमें। अब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में क्या है, जस्ट सपोज आपके पास ये कंपाउंड है CH3Cl। अब इसमें अगेन मैंने आप इस तरह से बनाया है, यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड है क्लोरीन के साथ। किसी वजह से अगर क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना है तो क्लोरीन क्या करेगा, बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द कार्बन विथ इट। तो इसी वजह से क्या बनेगा, एक कार्ब कटायन बनेगा और एक अनायन बनेगा क्लोरीन का। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। तो यही हमने सीखा, इसी के थ्रू बॉन्ड टूटता ही है हेट्रोलिटिक क्लीवेज में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म। और भी बहुत कुछ है, अभी पढ़ना है, तो जस्ट शुरुआत है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। थैंक यू सो मच।